It is too much hard. Try to understand, okay? This is little bit hard. But I know you all are very smart. You will understand. So I'm going to write question number B, that is 3 whole number 12 upon 4 plus 3 whole number 2 upon 8. Now observe the question and tell me what is different in this question. Tell me the difference of this question with previous question. मिस Tell me first. इसमें 3 और 3 से में बाकी चारों अलग है. You have to say, teacher, these two fractions are mixed fraction. This is the smart answer. Inaya? Okay, ये B question में teacher, you have given us mixed fraction. Tanza Misbah, you have solved this question. क्यों इतनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम मिस. वालेकुम अस्सलाम बेटा. मुझे तो समझ नहीं आया. मुझे करवा क्या रही हैं आप? Beta, I have just written a question right now. Now I am going to explain this question. Kindly look at your screen. And you have to quiet everyone, quiet everyone. And I am asking anything from you. No need to write on copy. I will share each and everything. I will share each and everything. So no need to use your copy right now. Just listen to your teacher. Okay, teacher. क्वेश्चन नंबर बी में आपको मिक्स फ्रैक्शन नजर आ रहा है. सही है. सबसे पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को टर्न करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. आपको याद होगा हमने प्रीवियस क्लासेस में मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना सीखा था. आज हम वही चीज लाइक फ्रैक्शन में भी अनलाइक फ्रैक्शन में भी करने जा रहे हैं. सो काइंडली look over there how to turn mixed fraction into improper fraction. It is very easy that you have to multiply 4 with 3. Okay, you have to multiply 4 with 3. So what will be your answer? 4 into 3 is 12. 4 into 3 is 12. Yes, Mariam. Miss, can you repeat again? Your voice was lagging. My internet is a bit bad. Okay. So listen to me again. In question number B, we are seeing mixed fraction. Okay. Yes. First of all, we have to turn these mixed fraction into improper fraction. And Okay. I taught you how to turn mixed fractions into improper fraction. Okay. For turning mixed fraction into improper fraction, first of all, you have to multiply denominator with whole number. Whole number के साथ हम denominator को multiply करेंगे. What is your Yes. answer? 12. Okay. आपका आंसर बेटा क्या आया? 12. I am writing 12. Whatever is your product. बेटा जब भी हम multiply करते हैं, multiply के बाद जो भी हमारे पास आंसर आता है वो आपका कहलाता है product. Okay. Whatever you will get the product, then you have to add with numerator. जो भी आपके पास आपको प्रोडक्ट आएगा आप उससे ऐड कर दोगे न्यूमरेटर के साथ. गुड जॉब रोहा, यू आर डूइंग करेक्ट. ओके. आपके पास आपका प्रोडक्ट आया 12. इस 12 को हम ऐड कर देंगे विद न्यूमरेटर. ओके. सो यहाँ देखिए जब हमने 12 को 12 के साथ ऐड किया, व्हाट विल बी योर आंसर कमरोश? योर आंसर इज राइट, 24. सही है. एंड योर डिनोमिनेटर इज 4. Got it? Yes. Now, after हमें this नीचे ऐसे लिखना है ना, addition sign. बेटा वो मैं सब आपको दे दूंगी. Don't worry. मैं अभी right after the class I will share copy work. You have to copy solution A, B, and C, and then you have to do question number D and E by yourself. Now, next fraction, we are seeing that next fraction is also mixed fraction. So we have to turn this mixed fraction into improper fraction. How to turn this mixed fraction into improper fraction? We will multiply 3 with 8. Yes, 3 with 8. What is your product?
8 threes are 24, right? Yes. I am writing 24. And then you have to add product with numerator. 24 plus So 2. we will do 24 plus 2. It is 26. Yes, it is 26. 24 plus 2. It is 26. Okay. टीचर वो जो हमने ये जो होमवर्क दिया है इसका ये होमवर्क करके उसकी पिक्चर भेजनी है। हाँ जी, पिक्चर आपको लाजमी भेजनी है सबको, क्योंकि मैं आप पर ट्रस्ट नहीं करूंगी अब। फिर ऐसा ना हो कि कॉपी चेक करने आए और आप पर आपका काम कंप्लीट ना हो। दैट इज व्हाई। नाउ look at your fractions. Denominators are same or different? Jafar, try to understand. Denominators are same. Different. So we have to make the denominator same. अब हमें denominator को क्या करना होगा? Same करना होगा. How to make? Miss, Tell now me we have first. to see if when 8 comes into four stable and 2 times. Yes, Roha, your answer is right. Your answer Miss is right. two. Mariam, listen to me. Miss two. Listen to me. I told you that you have to see the denominators. आपने denominators को check किया Yes. और big one denominator कौन सा है आपके पास? 8 है. That means we have to turn 4 into 8. So 4 को 8 पर turn करने के लिए किससे multiply करूंगी मरियम? Fast. And Inaya, where are you? Inaya, where are you? 2. I am here, Miss. So are you listening? Yes, Miss. Inaya, tell me, are you listening or hearing? Miss, listening. Can you tell me the difference between listening or hearing? There's no difference. No difference. It is a huge difference between them. इसके बीच में एक डिफरेंट होता है. हेयरिंग का मतलब होता है कि आपने सुना और उसे अनकही कर दी, लाइक अनसुनी कर दी कि मुझे तो समझ ही नहीं आया, छोड़ दिया. लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सुनना भी है और अंडरस्टैंड भी करना है. ये फर्क होता है. तभी आपकी टीचर वर्ड यूज करती है लिसन टू योर टीचर, लिसन टू योर टीचर, नॉट हियर योर टीचर. ओके. तो मरियम ने बताया और रोहा ने भी हमें बताया कि हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्न हो जाएगा 8 में. जस्ट 4 को करूंगी या 24 को भी करूंगी? टेल मी. कबीर, Miss 24 को और करूंगी तो 20 को भी. 24 को भी. ये 24 को भी करूंगी, क्योंकि जिस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम चेंज कर रहे होते हैं तो उसके न्यूमरेटर को भी चेंज करना जरूरी होता है. सो नाउ 24 into 2. हमने 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई करा, व्हाट विल बी योर आंसर? रोहा, योर मैथ्स इज अमेजिंग. 48 upon 8 plus 26 upon 8. Now denominators are same. Yes, Jafar, right. Yes. Denominators are same, student. So now how many times I have to write denominators? One time. Miss, One time. one time. I didn't understand that one time. But okay. Okay, one time. So now tell me, what about the numerators? What I have to write? Numerator. We have to numerator plus 48 and 26 together. Yes, very good. 48 plus 26 together. So what will be your answer, students? You may use your rough work. आप अपने पेज की साइड पर रफ वर्क भी यूज कर सकते हैं, जहां आप 48 और 26 को प्लस करेंगे. I don't have space on screen. That is why I'm not using my rough work space. Hunain, you are right, beta. Now tell me the answer of 48 plus 26. Who wants to give me answer? Give me fast. टीचर 59 Wait, I am giving. Miss 74. Miss 74. 74. Are you sure? 74 teacher. Miss 74. 74. Okay, Yes, let me 74. do at my hand. टीचर 70 70 70 Some 70 people are saying 74, some 74. are saying 70. Miss So the right 74. answer is 74. The right answer is 74. 74. Okay. Miss Zara, 74. is not right answer. 74 is right answer. So I am writing 74 upon 8. Now tell me, 74 and 8 comes any times of table together? नो टीचर No. How could you say no? How Yes, could you say yes. no? Yes. Maybe. Yes. Tell me. टीचर दे हैव कम
In which table? Yes. We have to cut with 2 table. 2 times table से हम कट कर सकते हैं. Any big table? 2 table. Yes, teacher. Any more big table? We can use 4 times 4 table. table. 4 times table. Okay, we are going to use 4 times table. It's up to you, beta. If you are using 2 times table, it is also right. If you are using 4 times table, it is also right. Yes, Okay. but how will we figure out in which one to 74 comes in for the 2 times table of? Yes, I am explaining, Mariam. Look. I am explaining. Beta, I am 32.4. अपसाइड वर्किंग. मैं ऊपर वाली वर्किंग को इरेज कर रही हूँ ताकि मैं ये 74 और 8 को आपको कट करके दिखाऊं. सही है? टीचर ये कौन सा जो आप लिखवा रही हैं? And I cut. One is very hard. Now we are cutting off 74 and 8 together. Okay. Look, I am writing over here and cut off 74 and 8. हमें पता है 8 टाइम्स टेबल में हमारे पास 4 टाइम्स टेबल में हमारे पास 8 आता है. हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. आई एम राइटिंग 2 ओवर हियर. अब हम देखिए 4 का टेबल हमें जस्ट 10 तक याद होता है. 4 into 10 is equal to 40. यहाँ तक हमें याद होता है. लेकिन हम इसे सिंगल डिजिट कट करेंगे. 1 by 1 डिजिट कट करेंगे. कैसे? आपने जस्ट अभी मरियम चेक करना है और दूसरे बच्चे भी काइंडली फोकस. ये आपके लिए न्यू थिंग है तो इसे जरा अच्छे से कैच कीजिए. पॉइंट मिस किस तरह कर रही है. कमरोश बेटा मुझे सुनो. देखो पहले हम क्या करेंगे. जस्ट हमने 1 डिजिट कैच करेंगे. 1 डिजिट आपने कैच किया तो आपके पास 1 डिजिट क्या आ रहा है? 7. क्या 4 के टेबल में 7 आता है? टेल मी. No. और टीचर 7 से छोटा क्या आता है 4 के टेबल में? 7 से छोटा कमरोश समझने की कोशिश करो बेटा. 4. हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम. ओके कमरोश बेटा समझने की कोशिश करो. 1 टाइम आता है. सही है. तो मैंने यहाँ 1 लिख दी. नाबिया को नहीं आ रहा. हाँ बेटा नाबिया कोशिश करो समझने की. मिस मुझे भी नहीं आ रहा. थोड़ा सा नहीं आ रहा ना. कोशिश करो समझने की. ओके हमने 4 लिया लेकिन 7 4 के टेबल में नहीं आता इसलिए हमने 4 लिया. तो जब हमने 7 और 4 को माइनस किया तो मेरे पास कितने नंबर बच रहे मुझे बताइए. मिस अनाबिया और कमरोश का आंसर इनकरेक्ट नहीं. सभी का इनकरेक्ट आंसर 3 4 नहीं है वो. और मेरा जहां तक ख्याल है ये 4 के टेबल से कट हो भी नहीं रहा. तो इसलिए अब हम मूव करेंगे 2 टाइम्स टेबल की तरफ. Now we are moving towards 2 times table. Okay. यहाँ देखिए हम 2 times table को फॉलो करेंगे. वो तो इजी होता है सबको आ जाएगा. फिर it's 74 8 2 4s are 8. Okay 2 4s are 8 and now you have to find at what times they are coming together. मिस थोड़ा अब समझ आ रहा है. ओके 2 के टेबल में 7 नहीं आता. 7 से छोटा बेटा क्या आता है? 3 आता है. कितने टाइम्स? 1 टाइम्स. जब हमने 7 और 6 को माइनस किया तो बेटा मेरे पास 4 रिमेन हुआ. 1 रिमेन हुआ तो हमने 1 कैरी कर दिया. समझ नहीं आया. बेटा समझने की कोशिश करो बच्चों. चलो मैं दोबारा से समझाती हूँ. दोबारा से कर रही हूँ मैं. ये मैं पूरा क्वेश्चन रब कर रही हूँ. मैं दोबारा से ये कर रही हूँ. जी आपका आंसर करेक्ट है कंजन. लेकिन मैं दोबारा बच्चों के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ. दोबारा से समझिएगा. जी मैं दोबारा कर रही हूँ. आप दोबारा से सुनिए. 74 upon 8. ओके हम 2 टाइम्स टेबल यूज कर रहे हैं. 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स. ओके हमने यहाँ 4 लिख दिया. अब हमने 2 का टेबल 74 तक याद नहीं किया हुआ तो हम स्टेप बाय स्टेप कट करेंगे. लाइक हम फर्स्ट डिजिट को कैच करेंगे. पहले हमने फर्स्ट डिजिट देखा तो हमारे पास डिजिट क्या है बेटा? 7 है. क्या 2 के टेबल में 7 आता है? और टीचर लेकिन उसको छोटा बेटा हमारे पास क्या आता है? 6 आता है. कितने टाइम्स? 3 टाइम्स. बेटा क्वेश्चन में है 7. कबीर आर यू लिसनिंग मी?
लेकिन हम यूज क्या कर रहे हैं, 6 को यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 और 6 को माइनस करेंगे और जो भी हमारे पास डिजिट आएगा वो हम कैरी कर देंगे 4 के साथ। तो मुझे बताइए 7 और 6 को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 1। ओके, 1 हम किसे दे देंगे, 4 को। सही है, 1 हमने 4 को दे दिया। देखिए तो ये हमारा किसमें टर्न हो गया, 14 में। किसमें टर्न हो गया बेटा, 14 में। क्या 2 के टेबल में 14 आता है? 2 के टेबल में 14 आता है? Yes, 7 times. 7 times. So we are writing 7 over here. So we cut off them and we got the answer that is 37 upon 4. मिस मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुआ। I know मरियम, ये एक बड़ा सा आंसर टीचर ने करवा दिया, जो समझ नहीं आ रहा। चलें दोबारा से करते हैं, दोबारा से सीखो। जरा सा मुश्किल थी इसकी कटिंग, पर हम कोशिश करेंगे इसे करने की। दिस इज योर आंसर। समझाया था ना, जो पहला स्टेप समझाया था मुझे वो वाला पूरा समझ आ गया, लेकिन अभी वाले स्टेप समझ नहीं आ रहे बस। ओके, दोबारा से सुनिए कि 74 और 8 हमने रिकॉग्नाइज किया, बोथ डिजिट्स आर नंबर्स आर इवन नंबर्स। जो भी इवन नंबर्स होते हैं वो 2 टाइम्स टेबल से कट होते हैं। सही है, 2 टाइम टेबल से हमने कट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया कि 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, हमें पता चला वो आता है 4 टाइम्स। तो देखिए मिस इकरा ने 4 यहाँ कट करके लिख दिया। सही है, अब हमें इतना बड़ा टेबल याद नहीं है कि हमें ये भी पता हो कि 2 के टेबल में 74 कितने टाइम्स आता है। सैयद अली मेहदी, स्टिल 5 मिनट्स रिमेन। ओके, तो अब आप सिंगल डिजिट को यूज करते हुए कट ऑफ करोगे। पहला डिजिट हमारे पास बेटा क्या आता है, फर्स्ट डिजिट हमारे पास है 7। 7 2 के टेबल में नहीं आता। 7 से छोटा बेटा 2 के टेबल में क्या आता है, 6। ओके, हमने 6 को यूज किया, कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। तो देखिए मैंने रिपीट करें, आपकी आवाज बहुत लैग हो रही है। बेटा सिंगल डिजिट को हम कट करेंगे। 7 हमने देखा और 7 कितने टाइम्स आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, तो हमने 7 से छोटा देखा, तो वो क्या है, 6। 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। तो देखें टीचर ने यहाँ 3 दिया। सही है, लेकिन देखें क्वेश्चन में था 7 लेकिन टीचर ने 6 यूज करा। सो 1 तो इनका जो डिफरेंट है वो कहाँ गया, वो कहीं जाएगा नहीं, वो हम कैरी कर देंगे 4 के साथ। देखिए टीचर ने 1 को कैरी कर दिया 4 के साथ। किया, जल्दी से देखिए। मिस है, ये वाला पार्ट समझ नहीं आया जो आपने 4 का समझाया था। 4 का क्या, 4 ओके, और 4 और 1। देखो मरियम क्वेश्चन में था 7। सही है, सही। कमरोश आप भी सुनिए और अनाबिया आप भी मुझे सुनिए। क्वेश्चन में था 7, सही है, लेकिन Yes. हमने यूज क्या किया, 6 किया। 6 सही है। 7 और 6 का डिफरेंस क्या होता है मरियम? के बस 7 1 नंबर आ गया 6 के। बेटा आई एम आस्किंग डिफरेंस बिटवीन 7 and 6। यस कबीर। 7 is greater than 6. आई एम आस्किंग डिफरेंस। हेलो, डिफरेंस मींस माइनस करके मुझे बताइए। जी कबीर, आई एम हियरिंग। टीचर, इट इज 1 minus. मेरी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो रही थी। 1 is the Okay. answer. 1 बेटा 7 और 6 को आप सब्ट्रैक्ट करोगी तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1। सही है, 1 हम एज अ कैरी 4 को दे देंगे। सही है, जब हमने 4 को 1 कैरी कर दिया तो 4 चेंज हो गया 14 में। सही है, 4 चेंज हो गया 14 में। सो नाउ टेल मी बेटा 2 के टेबल में 14 कितने टाइम्स आता है? 7 टाइम्स आता है। तो देखिए हमने इसे कट कर दिया और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 37। इस तरह हम सिंगल डिजिट कट करते हैं। सही है, जो आपकी एक्टिविटी रिमेन है उसके अंदर यही सिंपलेस्ट फॉर्म है जो हमने प्रैक्टिस में करनी थी। जी मेरी क्लास ओवर हो चुकी है। अब मैं आपको एक जीके का वर्क असाइन कर रही हूँ। गिव मी 5 मिनट्स। यस, 37 upon 4 is your answer. Now listen student. What are you sending? साइन कर रही हैं वो, जरा व्हाट्सएप पे भी दे दिए। Okay, listen to me beta. Now I am assigning you GK work. Open your GK worksheets everyone. मैथ्स का कॉपी वर्क आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगा।
Right after the वर्कशीट class. दें। 1 मिनट में जरा जीके की वर्कशीट। मिस जीके की वो वाली वर्कशीट जो आपने दी थी। Yes. Take out your Okay. GK worksheet. It is मिस very easy to solve. आपने कल जो होमवर्क दिया था जीके का वो वर्कशीट में चिपकाने के लिए वो मैंने कर लिया। ये जो आपने कल वर्कशीट का होमवर्क दिया था उसी में से है ना, वही वाली वर्कशीट ना? Look, kindly open this one worksheet. मिस वो मैंने Rohan. वर्कशीट में की थी क्योंकि आपकी आवाज बहुत लैग हो रही थी उस टाइम और फिर मैंने बस सुना था कि डू इट। Okay. तो आपकी Give me आवाज 5 minutes more. I am explaining this worksheet how to solve this one. Okay. I am clicking picture and tell you how to solve. It is very interesting worksheet, beta. You will enjoy. मिस हमारा पिछला होमवर्क क्या था? The previous one worksheet, beta. मिस दिस वर्कशीट। I am sharing picture, beta. टीचर ये वर्कशीट मैंने कर भी ली है। Oh, found that it. is great. I found Who is speaking? टीचर मैं Tell क्या me your name. मैंने May tell me your name. मिस वाली वर्कशीट पेज भी करना है। Beta, this one page we will do. Okay. First of all, beta, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्शन मेंशन करनी है NSEW okay. आपको स्मॉल बॉक्सेस नजर आ रहे हैं सभी का। I know the timing, that is why I'm asking you only 5 minutes more for explaining this worksheet. Okay, otherwise you will face the problem how to solve this. Now students, in the boxes you have to write NSEW what do they stand for? N means north, so this is your north side, and the opposite of the north is 4 p.m. I know baby, just give me 5 minutes. I am explaining this worksheet, then you will do मिस question आप number मुझे by मिस yourself. वो जो एक्स्ट्रा कॉर्नर्स हैं उनका क्या होएगा? Extra corner you have to cut it by yourself, Mariam. नॉर्थ students. वेस्ट साउथ Where is your east? This is your east. नॉर्थ Okay, at वेस्ट the नॉर्थ center. ईस्ट This is your east and this is your west. वेस्ट। Now between north N and W, what do you have to write? Between N and W, what do you have to write, beta? नॉर्थ वेस्ट। टीचर NW मिस नॉर्थ Yes, वेस्ट। NW, northwest. NW लिखेंगे टीचर नॉर्थ वेस्ट की शॉर्ट फॉर्म। Yes, baby. And what about the SW between? टीचर साउथ वेस्ट। टीचर साउथ वेस्ट की शॉर्ट फॉर्म। Okay, what about the ES between? ईस्ट साउथ ईस्ट। Southeast, SE. And what about the NE? एन और ई। Okay. Okay, question number 1 we have done in the class, and you have to do question number 2 by yourself. It is very interesting activity and you have to color the picture as well. Okay, if you have any problem regarding question number 2, you may ask. Okay, so now students, I am going to conclude my session and chapter number 1 of GK has been completed. Okay. ओके टीचर। हाफिज मिस। हाफिज Okay, टीचर, Allah थैंक Hafiz यू। everyone. Take care of yourself and thank you so much for giving me your precious time. Allah Hafiz everyone. टीचर मुझे अभी नोट बना रहे हैं। हाफिज। Okay. Allah Hafiz everyone. Take care of yourself. And we will meet on Thursday. Allah Hafiz. आज का दिन है मैंने हाफिज।